Hi everyone, welcome back. Let's try to complete this article related to this article. No, it's not article, it's the set of information that we have collated over the Sabarmati riverfront. That's important for our UPSC personality test perspective of this year. Let's try to complete it as early as possible. First point is that the Sabarmati riverfront is around 11.25 kilometers long. The construction had started in the year 2011. Now it has been completed. It is full-fledged functional. The total cost was around 1200 crores, and KPMG had listed it as one of the most innovative projects. It was in the year 2012. So these are just cherry points and nothing else. One special purpose vehicle was created for this, for the construction of Sabarmati riverfront. Special purpose vehicle acts as a body that has functional autonomy. It takes its own decision. It decides how the funds are going to be used. So it has a kind of independence. That is important in functioning. This is done so that the political interference and conflict with the local administration, such as the local municipalities, AMC and all, that can be avoided, so as to ensure control and coordination in the projects that are being handled. A brief background, if you see, then Sabarmati acts as a lifeline of Ahmedabad as a city. Ahmedabad city was founded in the year 1411 by Ahmed Shah. The river acts as an important source of water. That is important. It is not just a source of water, but it is also a symbol of culture and recreational activities in the region. Also, in terms of economic activities, the river has played an instrumental role in the development of the textile industry in the region. As for dyeing and all, the water of this river was used. Even the water of this river is used in the industries, mainly in the textile industries, then pharmaceutical industries, chemical industries that are located around. And then there's one point of untreated sewage. Untreated sewage is problematic as when it is directly fed into the water, it disturbs the natural ecological balance of the water. It also disturbs the flora and fauna that is existing in the water. Further, it also leads to waterborne diseases, as the same water is being used for human consumption also. As there are settlements across the river on both the sides, and since the river is rain fed, therefore the river is also, the settlements are prone to flood in the region, and that makes the flood management also important here. That is, the disaster management perspective makes important, regains importance here. Further, the river also acts as a point of divide between two different regions of the city. One is the old city and one is the new city. We see all the old kinds of construction and the concept of, such as the UNESCO World Heritage City that is existing. That is the old city, and the new city is the one which is economically flourishing now. This is mainly due to the availability of land, a huge area of land for the setup of various industries. आगे, this river is a major urban asset. Okay, that is fine. Then there is a brief of Sabarmati river is given. It is a monsoon fed river. We have seen it flows north south in the Ahmedabad. It is also a source of water. Historically, it has been important as Mahatma Gandhi had set up his Gandhi ashram there. Salt march had begun from here. Salt march had begun on 12th of March 1930. This date we remember. Then the water is used extensively to launder the clothes and to dye the textiles. In textile sector it is used. Apart from that, there is also a minor this info that रविवारी और kind of flea market मतलब चोर बाजार टाइप का जो होता है ना, सस्ती चीज़ें मिलती है, तो that market is organized every Sunday across on the bank of this river. आगे, one of the major issues that have been existing, मतलब हर एक सिटी में जो एग्जिस्ट करते हैं वो है अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो होता है, क्योंकि सारी सिटीज़ तो प्लानिंग के थ्रू नहीं होती. प्लानिंग के थ्रू हमारी जितनी सिटीज़ हुई है, जैसे गांधीनगर हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, दे आर मेनली प्लान सिटीज़. दे आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, तो ये प्लान होती है स्पेसिफिकली. अब अहमदाबाद होगी, मुंबई होगी, बैंगलोर होगी, दीज सिटीज़ हैव नॉट बीन प्लान. मतलब जब सिटीज़ शुरू हुई थी तब इतना सोचा नहीं गया था कि इतनी डेवलप करेगी, तो इतना प्लान होने की ज़रूरत है. तो प्लान होगा तो कंस्ट्रक्शन होगा तो जो रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्शन होगा, तो फिर जो फ्लड है, मतलब फ्लड इरोजन भी होगा, मिट्टी उट्टी निकाली जाती है, वो सब किया जाता है. आगे, रीजनल जोग्राफी अगर हम देखें साबरमती रिवर, तो साबरमती रिवर हमारे शुरू कहाँ से होती है? ये होती है हमारे राजस्थान से होती है. राजस्थान में कहाँ से? अरावली हिल से राजस्थान में, वहाँ से होती है. ये क्या है? मानसून फेड रिवर है, तो पेरिनियल रिवर नहीं है. टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 400 किलोमीटर की है. कहाँ जाती है ये? एंड में गल्फ ऑफ कैम्पे में जाती है. ठीक है, ये
मोस्टली क्या गुजरात में फ्लो होती है। इनिशियल इसका 9.5 किलोमीटर है ना, गुजरात में फ्लो नहीं होता। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज़ है ना, ट्रिब्यूटरीज़ के नाम याद करना क्योंकि ये अब तक रटे हुए नहीं है और नाम भी थोड़े अजीब से हैं, जैसे मज़म हो गया, वर्तक हो गया, मोहर हो गया। मज़म वर्तक मोहर, मज़म वर्तक मोहर, ये ट्राई कर सकते हैं। खरी हो गया, मज़म हो गया, वर्तक हो गया, मोहर हो गया, जिसको हम याद कर सकते हैं। आगे क्या, सेवरल रिजर्वायर्स हमने ये साबरमती रिवर पे क्रिएट कर रखे हैं। रिजर्वायर का काम क्या होता है? रिजर्वायर का काम होता है टू स्टोर वाटर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। द एक्टिविटीज़ कुड बी फॉर ह्यूमन कंजप्शन, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के डैम है इस रिवर पे, जैसे धरोई डैम हो गया, हथमती डैम हो गया, हरनव डैम हो गया। तो ये नाम हम कौन सी याद कर सकते हैं इसमें? धरोई हो गया, हाथमती हो गया, तो ये बैरेज फिर यही आ जाएंगे, और उसके बाद हरना हो गया। चलिए ये 3 नाम याद करेंगे, ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा हम जो देख रहे हैं ना फंक्शनल, मतलब एकदम फैक्चुअल एस्पेक्ट्स वाला देख रहा हूँ। फंक्शनल एस्पेक्ट्स में आते जाएंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली। आर्टिकल्स एक बार कंप्लीट हो गया ना अपने, तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या है फिर? जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनल एस्पेक्ट होता क्या है, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। जैसे रिवर है, अहमदाबाद में साबरमती रिवर है, तो उसका क्या रिलेवेंस है? तो इसका रिलेवेंस तो आप कैसे बताओगे? पहला है कि सर एक तो वाटर अवेलेबिलिटी के लिए है। ठीक है, अब वाटर अवेलेबिलिटी को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका ह्यूमन कंजप्शन के लिए हो गया, फिर एग्री के लिए हो गया, फिर आपका इंडस्ट्रीज़ के लिए हो गया, तो इनके लिए। उसके बाद इसका कल्चरल पर्सपेक्टिव है, रिक्रिएशनल है, तो जैसे अहमदाबाद आश्रम आप बता सकते हो, हम बता सकते हैं अहमदाबाद आश्रम हो गया। फिर उसके बाद हम रिवर फ्रंट वगैरह बता सकते हैं, ये हो गया। और उसके बाद थर्ड क्या है अपना? इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि वाटर फ्लो होता रहेगा तो नेचर अपनी पेस में ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, ये 3 सिग्निफिकेंस हो गया। इसके अलावा सिंस ह्यूमन सेटलमेंट्स है दोनों साइड पे, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है यहाँ पे, है कि नहीं? और जो सिटी है, सिटी का डेवलपमेंट इट हैज़ टेकन प्लेस across the river or on the banks of the river, and therefore it also becomes important in terms of the economic perspective. ठीक है, इट इज़ अ लाइफ लाइन, इट इज़ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन द रीजन। तो ये हो गया, तो दीज आर ऑल मतलब फंक्शनल हो गए, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन कहते हैं ना, तो यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इन्हीं को आप सब्सटैंशिएट करते हैं, जो हम फैक्ट्स वगैरह यहाँ पे याद कर रहे हैं ना उससे। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अहमदाबाद में रिवर एनकम्पासेस टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक रहेगा, कैचमेंट एरिया कितना है? 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है अपना। अब ये रिवर में पानी आता कहाँ से है, ये सब चीज़ें देखो। द फ्लड इन द इरिगेशन पास अहमदाबाद हैज सीन डिस्चार्जेस फ्रॉम द धरोई डैम अनाउंस्ड 12 hours इन एडवांस एंड रिलीज ऑफ वाटर अराइविंग एट अहमदाबाद। वासना बैरेज बिल्ट इन डाउनस्ट्रीम ऑफ अहमदाबाद in 1976. वाटर रिटेंशन साबरमती रिवर टू divert water for irrigation through Fatehwadi Canal. The Narmada Canal, which crosses the river few kilometers upstream from the river, is a part of the larger irrigation network. अब फ्लड वगैरह कब होता है? जब आपने रिजर्वायर या फिर डैम वगैरह बना रखे हैं, उसमें से आपने पानी छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे कौन सा हो गया? धरोई हो गया, हाथमती हो गया, फिर नर्मदा कैनल हो गया। नर्मदा कैनल भी इंश्योर करता है कि वाटर ना रिवर में मतलब कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। ठीक है, ये प्रपोजल वगैरह ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, किसी काम का नहीं है। आगे पास्ट में क्या हुआ ये भी अपने को करने की ज़रूरत नहीं, क्रोनोलॉजी वगैरह, क्रोनोलॉजी सेट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, नेशनल कंजर्वेशन प्लान बनाया गया था, भाई रुक जाए एक जगह, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट का इंसेप्शन आज सच करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था, ये हमने देख लिया। लेंथ वगैरह हमें पता है कितनी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट कुछ छपी थी, ये किसी काम का नहीं है। इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या है पानी के रिटेंशन के लिए? एक तो वासना बैरेज है, नर्मदा कैनल है, एसपीवी बना रखी है हमने। ठीक है, आगे देखता हैं। फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज़ फॉर क्या देखा है? फ्लड प्रोटेक्शन, बैंक प्रोटेक्शन, रिवर ट्रेनिंग हैव बीन फॉर्मुलेटेड। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बना रखी है। आप डेवलप करोगे, रिवर फ्रंट वगैरह डेवलप करोगे, तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनानी है आपको। किसके लिए बनानी है? एक तो आपका फ्लड हो गया, उसके बाद आपका जो बैंक है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद रिवर की ट्रेनिंग करके कुछ कॉन्सेप्ट लिख रखा है। ठीक है, चैनलाइज इनटू कांस्टेंट विड्थ अल्टरिंग। ठीक है, विड्थ एट डेप्थ, डेप्थ कितनी है पानी की? 10 मीटर है। ऑप्टिमल विड्थ कितनी है? 263 मीटर है। और वाटर हैज़ बीन सिलेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, डेप्थ पता आपने को, विड्थ कितनी होगी? विड्थ हम कह रहे हैं 263 मीटर की विड्थ है सर, इतनी है। अब कितनी है कितनी नहीं पता नहीं अभी। सीवेज का इंटीग्रेटेड फ्रॉम वाटर एंड सीवेज सिस्टम इंटरसेप्टर सीवर्स। सीवेज वाटर है, इसको ट्रीट करके ये जो रिवर है उसमें डालने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड स्टॉर्म एंड वाटर सीवेज सिस्टम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड स्टॉर्म एंड वाटर सीवेज सिस्टम का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो इम्प्लीमेंट किया गया है इसमें। वाटर रिटेंशन एंड रिचार्ज ये इंपॉर्टेंट है। साबरमती क्योंकि पेरिनियल रिवर नहीं है, तो इसमें पानी आएगा। पानी कहाँ से आएगा?
एक तो हमने वासना बैरेज बना रखा है डाउन स्ट्रीम ऑफ अहमदाबाद, मेक्स इट पॉसिबल टू रिटेन द वाटर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब ये जैसे रिवर ऐसे ऐसे जा रही है तो ये डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो यहाँ पे हमने क्या कि एक बैरेज बना दिया, इसका नाम है वासना बैरेज। वासना बैरेज क्या इंश्योर करता है कि जो इतना रीजन है यहाँ पे 15 किलोमीटर का रीजन है, यहाँ पे पानी बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारी नर्मदा कैनल है विच क्रॉसेज द रिवर अ फ्यू किलोमीटर्स अपस्ट्रीम फ्रॉम द सिटी विच मेक्स इट पॉसिबल टू रिप्लेनिश बैरेज रिटेन्ड वाटर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपनी नर्मदा कैनल जा रही है यहाँ से, ये अपस्ट्रीम में है। अब नर्मदा कैनल क्या इंश्योर करती है कि पानी ना यहाँ पे अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे ऐसे आता रहे, ठीक। एक्सेस वाटर होगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, एक्सेस वाटर होगा तो ऐसे निकल जाएगा, और पानी जब चाहिए होगा रिवर में तो पानी हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है फंडा, ठीक है। तो इतना कंटेंट था इस आर्टिकल में। आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर साबरमती रिवर फ्रंट वाला, और याद भी हो गया, इसमें अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। चलो एंड करते हैं इस वाले वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।